Okay. Now, check the homework some classification first, all of you. देखो, first exercise. Capital account is personal and capital. Traditional में personal, modern में capital, right? Classification के लिए it is capital. Bad debts is nominal and expense. Stock is real and asset. बहुत बढ़िया. Cash real and asset. Goods मतलब stock real and asset. Interest nominal and expense और income दोनों हो सकता है. But in the absence of any information, you assume it is expense. Discount nominal and expense भी हो सकता है, income भी हो सकता है. But in the absence of any information, you can assume expense. So nominal and expense. Loss by fire nominal and expense. Printing and stationery nominal and expense. Bank of India personal and asset और liability. कुछ भी हो सकता है as per the deal. Debtor भी हो सकता है और creditor भी हो सकता है. Mr. Raghunathan भी PAL, personal and asset or liability. ABC partnership firm also PAL, personal and asset or liability. Building is real and asset. And तीन छोड़ने बोले थे, उसके बाद investments are real and asset. इधर गड़बड़ हो जाती है, students income लिख देते हैं. Investments are not income. Investments are real and asset. उस पे जो return आता है वो income होता है. जैसे interest आता है वो income and nominal है. Dividend shares are assets, but उसपे जो dividend मिलता है that is income, got it? That is nominal. Fixed deposits are assets, real, and उसपे जो interest आता है that is nominal. Bonds are real asset, उसपे जो interest मिलता है that is income, nominal. Okay? चलिए. First exercise, any doubt anyone? All clear? पक्का? बढ़िया. Second exercise, goods account is real and asset. Salary is nominal and expense. State Bank of India, personal and asset or liability. बहुत बढ़िया. Institution, printing and stationery, nominal and expense. Discount, nominal and expense. Income भी हो सकता है, but in the absence of any information, nominal and expense. Capital is personal and capital. Vijay account, PAL, personal and asset or a liability. Carriage inwards, nominal and expense. Outstanding prepaid ना बोला था. What is carriage inward? Remember, goods को लाने का खर्चा. Sorry. Then commission received in advance भी नहीं था. Loan account, personal and liability देना बाकी है. Stock, real and asset, बहुत बढ़िया. Investments, real and assets, correct. Loss by fire, nominal and expense. Tools, real and assets, perfect. Dada library, PAL, personal and asset or liability, perfect. Repairs to machinery, nominal and expense. Manager's salary, nominal and expense. Copyrights, real and assets, intangible assets. Patents, real and assets, perfect. Shares, real and assets, perfect. Livestock, real and assets. Animals used in business. Internet charges, nominal and expenses. Municipal taxes, nominal and expenses, perfect. Output GST, input GST, बाद में करेंगे. Audit fees, nominal and expense. Bad debt, nominal and expense. Premises, real and asset. Premises का मतलब होता है property. Premises are place of doing the business. So they are real and asset. Then premises के बाद you have leasehold building. That is also real and asset. Leasehold, freehold बताया था ना. Freehold में complete ownership, leasehold में 10 years, 15 years, 20 years तक का ownership. But both are your assets, real and asset. Leasehold building is also real and asset, and freehold property is also real and assets. Mesa Sunita Textiles, PAL, personal and asset or liability, depending on the situation. Proprietor's wife also, PAL, personal and asset or a liability. Is that clear? Then
स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स रियल एंड एसेट बॉन्ड्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर इन्वेस्टमेंट्स सो रियल एंड डिबेंचर अकाउंट रियल एंड एसेट व्हाट आर डिबेंचर्स रिमेंबर company takes loan from us you give loan to the company by buying debentures you pay them आप कंपनी को लोन देते हो डिबेंचर खरीद के उनको पैसा देते हो आपको क्या मिलता है उधर इंटरेस्ट इज योर इनकम but debentures are your asset, real and asset. So debentures are real and asset. Stock of stationery, real and asset. This is not stationery. Stationery अलग है, stock of stationery अलग है. Stationery account मतलब जो use हो गया. Stock of stationery मतलब जो बच गया. जैसे stock of goods होता है, बच गया, next year काम आएगा. So real and asset. जैसे stock of stationery भी real and asset. Okay. आउटस्टैंडिंग नहीं बोला था प्रीपेड अनएक्सपायर्ड नहीं बोला था गैस एंड लाइट नॉमिनल एंड एक्सपेंस डेटर्स पर्सनल एंड एसेट यार डेटर्स एंड बैंक एक्सेप्शन थे डेटर्स एंड बैंक दोनों एसेट है अपना पैसा पड़ा है बट रियल नहीं है एक ह्यूमन बीइंग एक आर्टिफिशियल एंटिटी इसलिए दे आर पर्सनल रिमेंबर तो डेटर्स आर पर्सनल एंड एसेट ह्यूमन an asset पैसा लेना बाकी creditors personal and liability human beings and पैसा देना बाकी is that clear then goodwill is real and asset trade expenses are nominal and expense royalties perfect nominal and expense perfect royalties are nominal and expense bills receivable है ना अभी for the time being याद रखो ये आपको next ईयर आएगा डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में बिल्स रिसीवेबल आर सिमिलर टू डेटर्स के जैसा होता है पैसा लेना बाकी है एसेट होता है एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब आप उसको यूज कर सकते हो टू सेटल ट्रांजैक्शन ये वो वाले बिल्स नहीं है जो आपके परचेज सेल में बिल्स बनते हैं ये वो बिल नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आप जैसे कैश देके सेटल कर सकते हो ना ट्रांजैक्शन वैसे बिल देके भी सेटल कर सकते हो इट्स एन एसेट सो इट्स रियल एंड एसेट रियल एंड एसेट बिल्स रिसीवेबल वो क्या है इसका मीनिंग वगैरह डेप्थ में बाद में पता चलेगा फिलहाल उसको टाइमिंग ट्रीटेड लाइक कैश रियल एंड एसेट ओके सेटल करने के लिए काम आता है लाइक कैश बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उसको बैंक कमीशन इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस बैंक चार्जेस नॉमिनल एंड एक्सपेंस पैकिंग चार्जेस नॉमिनल एंड एक्सपेंस ब्रोकरेज नॉमिनल एंड एक्सपेंस भी हो सकता है इनकम भी हो सकता है बट कुछ नहीं दिया अज्यूम एक्सपेंस नॉमिनल एंड एक्सपेंस मशीनरी अपकीप नॉमिनल एंड एक्सपेंस व्हाट इज मशीनरी अपकीप मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी डिबेंचर इंटरेस्ट नॉमिनल एंड इनकम बिकॉज़ डिबेंचर्स आर इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा पे नहीं करोगे मिलेगा गॉट इट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर में करोगे मिलेगा एफडी में करोगे मिलेगा ऑल दीज आर इनकम सो नॉमिनल एंड इनकम रेलवे फ्रेट नॉमिनल एंड एक्सपेंस व्हाट इज रेलवे फ्रेट मालगाड़ी का ट्रांसपोर्ट का पैसा मोबाइल चार्जेस नॉमिनल एंड एक्सपेंस लूज टूल्स रियल एंड एसेट tools both are real and assets publicity nominal and expense बहुत बढ़िया employees provident fund personal and liability यार दो आइटम बताए थे contribution to provident fund and provident fund contribution मतलब हर महीने you are putting that thousand that's your expense nominal and expense and fund मतलब वो बड़ा अमाउंट पूरा बन गया जो हमें उसको देना है हमारा नहीं है एम्प्लॉय को देना बाकी तो वो हुआ लायबिलिटी सो पर्सनल एंड लायबिलिटी ओके प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड इज पर्सनल एंड ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल किसी ह्यूमन बीइंग या इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट तो देना बाकी किसी को देना बाकी ऑल लायबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल Profit on sale of furniture, nominal and income. Loss on sale of machinery, nominal and expense. Income tax is drawn. बताया था यार बिजनेस में कोई सेपरेट टैक्स नहीं सोल प्रोप्राइटर हम लोग किसका बिजनेस का अकाउंट्स कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर मैनेजर उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स में कोई सेपरेट टैक्स नहीं हो
तो इनकम टैक्स बिजनेस के प्रॉफिट्स में नहीं है, पर्सनल इनकम, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है? यहाँ पे दिखने का मतलब ये है कि ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाल के टैक्स पे किया। जैसे ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल के लोनावाला घूमने गया, ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के डांडिया राज खेलने गया, जैसे ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल के टैक्स। So income tax is a personal expense, not a business expense. It's a personal expense. So that is personal and drawings. Traditional में personal है, modern में it is drawings. Is it clear? Second exercise clear है सबको? Income tax देखिए मतलब वो drawings है, business में से पैसा निकाल, personal and drawings. Okay? Any doubt in second one? No sir. All clear? Third one. Machinery account was real and assets. What happened? No back support. आगे ले लो मैं. Now machinery is real and asset. Is that clear? Then conveyance is nominal and expense. Nominal and expense. Okay. Then bank account. What is bank? Personal and asset. सुनना ध्यान से सब लोग. What is bank? Bank is personal and assets. This is not Bank of India, State Bank of India. ये बैंक मतलब अपना अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है. जैसे कैश इज एन एसेट, वैसे बैंक इज ऑल्सो एन एसेट. कैश अपना एसेट है, पैसा है. बैंक में अपना पैसा पड़ा हुआ, वो भी एसेट है. लेकिन is bank real or personal? Personal. Why? Because it is an institution. It represents an institution. So real नहीं है, personal है, but asset. So personal and asset. Understood? ये लो समझा? So bank is personal and asset. Goods are real and asset. Stock, okay. Then building. Nominal income. No, building is real and asset. बिल्डिंग इनकम है भाई, हर साल बिल्डिंग कमाता है. इतना अमीर आदमी पहली बार देखा. बिल्डिंग इज रियल एंड एसेट, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, खरीदा बेचा, फिक्स्ड एसेट, राइट, लॉन्ग टर्म. हेलो, बिल्डिंग इज रियल एंड एसेट. कैपिटल पर्सनल एंड कैपिटल. पर्सनल एंड कैपिटल, बहुत बढ़िया. ड्रॉइंग्स पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स. पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स, एब्सोल्युटली राइट. लोन पर्सनल एंड लायबिलिटी, बहुत बढ़िया. पर्सनल एंड लायबिलिटी. अल्फा स्टोर्स पर्सनल एंड एसेट और लायबिलिटी. एंड स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी मतलब यूज हो चुका है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज रियल एंड एसेट. स्टेशनरी इज नॉमिनल एंड. Is that clear? Any doubts? No. Third exercise, second exercise, first exercise, all clear? Yes. Now we are actually on Sir, capital and drawings personal claim represents the owner. But in real estate, no? Because it is an asset. Hey bhai, the capital is a liability. Drawings is like an asset, true, but it represents owner. Just like debtor. Debtor are humans. Owner is human being, right? Human से लेना है, तो human beings are person. Debtor कैसा? Personal and asset. Drawings is also personal, but it is not asset. Modern में it is drawings. Personal and drawings. वैसे asset है, एक अपने को पैसा लेना बाकी है, but owner से, human being है इसके लिए personal. Debtor के जैसा. Debtor, bank, drawings, all are personal. Humans. So drawings और कैपिटल दोनों ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको? ओनर. So that's why both are personal. अभी we are actually starting with the recording process. Okay? Recording process के लिए 3 चीजें आनी चाहिए आपको. Number 1, what is an account? Account पता है सबको. Number 2, classification. वो भी पता है अभी आपको. Real, personal, nominal, asset, liability, income, expense, capital, drawings, traditional as well as modern. Third step is golden rules. याद है मैंने गोल्डन रूल्स बताया था आपको लास्ट लेक्चर. कुछ गोल्डन रूल्स मॉडर्न के थे, कुछ गोल्डन रूल्स ट्रेडिशनल. व्हाट आर द रूल्स फॉर मॉडर्न आइटम्स? एसेट्स का रूल क्या था? बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट.
लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट घटा तो डेबिट, ऑपोजिट है, बड़ी क्रेडिट घटी तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ा तो डेबिट घटा तो क्रेडिट, इनकम्स बढ़ा तो क्रेडिट घटा तो डेबिट, बेसिकली एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट घटा तो क्रेडिट, एंड इनकम और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट घटी तो डेबिट, एंड कैपिटल क्या है, जस्ट लाइक लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, एंड कैपिटल घटा मतलब ड्रॉइंग्स बढ़ा, सो दैट इज डेबिट। एक ही याद रखना है इसमें से, कौन सा, बढ़ा दो डेबिट घटा दो क्रेडिट, लायबिलिटी ऑपोजिट है, नहीं, एसेट और लायबिलिटी का रूल ऑपोजिट है ना, एसेट बढ़ा दो डेबिट घटा दो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट घटी तो डेबिट, और एसेट और एक्सपेंस सेम है, लायबिलिटी और इनकम सेम है, लायबिलिटी और कैपिटल सेम, या बट उसका कुछ ऐसे मीनिंग नहीं है ना, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, इज डज दैट मीन डेबिट अच्छा क्रेडिट बुरा या क्रेडिट अच्छा डेबिट बुरा, it is just for interpretation, it is just for interpretation, like for example मैं आपको बोलूं कि आप रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, जियो का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, उसमें आपको दिखा ट्रांसमिशन टावर डेबिट हुआ, ट्रांसमिशन टावर डेबिट हुआ. Now you will think, what is transmission tower for Jio? What is transmission tower for Jio? Asset or liability? Asset. बराबर है? What is transmission tower? Asset. और ट्रांसमिशन टावर डेबिट हो रहा है, तो आप सोचोगे हाँ व्हाट इज द रूल फॉर एसेट, बढ़ा तो डेबिट घटा तो क्रेडिट, डेबिट हुआ ट्रांसमिशन टावर बढ़ा, मतलब भाई ने ट्रांसमिशन टावर खरीदा है, मतलब भाई एक्सपेंशन मोड में, मतलब आगे प्रॉफिट्स बढ़ेगा बिजनेस का, दैट इज हाउ यू इंटरप्रेट, आर यू गेटिंग दैट. आप अडानी का बुक्स देख रहे हो, ओके, और उसके बुक्स में आपको दिखा बैंक लोन 20 crore rupees क्रेडिट, बैंक लोन 20 crore rupees क्रेडिट. अब आप सोचोगे व्हाट इज बैंक, लायबिलिटी और क्रेडिट हुई है, लायबिलिटी क्रेडिट हुई मतलब बड़ी है, मतलब अडानी ने 20 करोड़ का लोन लिया है, लोन लिया है, खुद का पैसा नहीं है, लोन है, मतलब इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट्स का प्रॉब्लम हो सकता है. एक्सपेंशन है लेकिन खुद का नहीं है पैसा, खुद के पैसे पे क्या है, कुछ रिटर्न प्रॉफिट ही है जो है, बाहर वाले से लोन लिया तो इंटरेस्ट बर्डन पड़ेगा ना, देना पड़ता है आपको इंटरेस्ट, वो पड़ा रहेगा आपके ऊपर, है ना, ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो. तो डेबिट क्रेडिट कोई अच्छा बुरा चीज नहीं है, उसको कंटेक्स्ट के हिसाब से देखना है. समझो मैं आपको बोलूं, आप डीमार्ट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, डीमार्ट के पीछे आ जाना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें. तो अगर सपोज आप डीमार्ट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, तो डीमार्ट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दिखा सेल्स आर क्रेडिटेड बाय 50 crores. Sales are credited by 50 crores. So you will check, हाँ what is sales? Sales is an income. और सेल्स क्रेडिट हो रहा है मतलब इनकम बढ़ रहा है, मतलब भाई का सेल बढ़ा है बाय 50 crores, मतलब प्रॉफिट्स भी बढ़ सकता है. Yes or no? This is how you interpret. आप टाटा मोटर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाते हैं, उसमें आपने देखा सैलरी डेबिटेड, लास्ट ईयर सैलरी डेबिटेड बाय 50 crores, दिस ईयर सैलरी डेबिटेड बाय 80 crores. लास्ट ईयर सैलरी डेबिट हुई थी 50 करोड़, इस साल सैलरी डेबिट हुई है 80 crores. तो यू विल थिंक हाँ व्हाट इज सैलरी, सैलरी इज एन एक्सपेंस. सो सैलरी डेबिट हुई मतलब सैलरी बढ़ी है, मतलब लास्ट ईयर उसने सैलरी पे की थी 50 crores और इस साल उसने सैलरी पे किया है 80 crore, मतलब सैलरी खर्चा बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट्स कम हो सकता है, मतलब थोड़ा दूर रहना बेटर है ऐसे बिजनेस से. तो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट. तो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर लाइक कोडिंग लैंग्वेज फॉर इंटरप्रिटेशन. डेबिट अच्छा क्रेडिट बुरा या डेबिट बुरा क्रेडिट अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से देखना है.
आपने देखा समझो एक बिजनेस है इन्फोसिस का नाम सुना है। इन्फोसिस के बिजनेस में आपको दिख रहा है ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट है, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट है। तो आप सोचोगे व्हाट इज ऑफिस बिल्डिंग? ऑफिस बिल्डिंग इज एन एसेट, और एसेट जो है वो क्रेडिट हुआ है, मतलब बढ़ा की घटा? घटा। एसेट क्रेडिट मतलब घटा, मतलब भाई ने ऑफिस बिल्डिंग बेच दिया, मतलब भाई इज इन द मोड ऑफ मतलब लॉस नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिजनेस का। बिजनेस का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्सपेंशन की जगह बिल्डिंग बेच रहे हो, मतलब बड़ा एसेट आप निकाल रहे हो, तो बिजनेस श्रिंक हो रहा है। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करवा रहा हो, लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करवा रहे और कट डाउन कर रहा है साइज, मतलब भैया बिजनेस आगे ग्रो नहीं करने वाला है, श्रिंक होने वाला है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो यही चीज है, इससे आप घुस सकते हो, बिजनेस को समझ सकते हो बाय लुकिंग एट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बिजनेस में होती है 4 चीजें। व्हाट आर द 4 थिंग्स? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड। तो एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम के कोडिंग सिस्टम बनाए गए हैं वाया डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ओके, दैट डेबिट एंड क्रेडिट इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ा गया। समझ में आया? उसके बाद हमने ट्रेडिशनल के भी रूल्स देखे थे। ट्रेडिशनल के 3 रूल्स है, याद है आपको? What are the 3 rules for tradition? पर्सनल का एक था, रियल का एक, नॉमिनल। पर्सनल में क्या थे? ह्यूमन बींग्स थे, मेनली दे वर ह्यूमन बींग्स एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो ह्यूमन बींग्स का रूल क्या था? डेबिट का, मतलब बिजनेस से अगर कुछ रिसीव कर रहा है कोई बंदा, डेबिट करो उसको, और बिजनेस को अगर कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या रूल? रियल में क्या थे? एसेट्स, चीजें थी, तो वो रिसीवर गिवर तो हो ही नहीं सकते, वो आ जा सकते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट वाज फॉर रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर रियल। एंड nominal were what? So what was the rule? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Expense हुआ तो डेबिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट। Is that clear? Those were the traditional rules, right? We saw both traditional and modern. Now we are actually going to record the transaction. इसके लिए आपको ड्रॉ करना है। अभी आपका पहली बार नोटबुक यूज हो रहा है। Take out your notebook and draw this table. This is called analysis table. इसको बोलते हैं analysis table. Okay? Analysis table. Draw करो सब लोग।